हमू गुरु गोबिंद सिंह, हमू नानक अस्त, हमू रतन जोहर, हमू माणक अस्त। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परमंगत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। जिना सास किरास ना विसर, हर नाम मन मंत। धन से नानका, पूरन सोई संत। संतन बिन अवर नंदाता बिया, जो जो शरण परै साधु की। सो पार ग्रामी किया। 259 अंग जी, 259 259 अंग गुरु गरीब नवाज बख्शिश कर रहे हैं। 44 नंबर सलोक ते पौड़ी गुरु अर्जन देव महाराज की पावन पवित्र बाणी 52 अखरी चल रही है। अखरां दे राही गुरु पातशाह ने ज्ञान दिता है। रारे अखर तो ज्ञान दे रहे ने। रारे अखर तो भावें अनेक नाम पैंदे ने। इत्थे दो नाम गुरु पातशाह ने दिते ने, एक नैगेटिव है, एक पॉजिटिव। सलोक दे विच रारे अखर तो ज्ञान दे रहे ने रोस। रोस हुंदा है गुस्सा। इस रोस उत्ते विचार दे रहे ने। रारे अखर तो रोस पैंदा है, ये नैगेटिव पॉइंट है। पौड़ी दे विच लफज है रेन। रेन मने धूड़। तो एक नू अपनाना है ते एक नू छड्डना है। सलोक दे विच रोस नू छड्डण लई कहा है ते पौड़ी दे विच रेन बनन लई कहा है। रेन कर देना मन नू, धूड़ बना देना मन नू। किवें बनाना है, आओ इहदा दर्शन करते हैं जी। सलोक रोस न काहू संग करो, आपन आप विचार। भई रोस ना किसी दे नाल करो, भाव के किसी उत्ते गुस्सा ना करो, अपने आप नू विचारो। रोस तो भाव असी गुस्सा भी कहांगे, दोष भी कहांगे। किसी नू दोष देन दी बजाय, क्योंकि दोष ही देंदा है बंदा दूसरे नू। कहंदे दूसरे नू दोष ना दे, दूसरे उत्ते गुस्सा ना कर, अपने आप नू विचारो, स्वयं दी स्टडी करो। किवें करिए? कहंदे इस तरह करो। होए निमाना जग रहो, नानक नदरी पार। होए निमाना, इस दुनिया के अंदर निमाणे बन के रहो। ये जग परमात्मा दा है, ये परमात्मा दी नगरी है। इस परमात्मा दी नगरी दे विच जिहड़े लोग निमाणे बन के रहिंदे ने, निमाणे दा अर्थ हुंदा है सियाणा हुंदियां होयां फिर इयाणे बन के रहना, ताकतवर हुंदियां होयां फिर कमज़ोर बन के रहना। वैसे बड़ा मुश्किल है, ताकत हुंदियां होयां कोई अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। गुरु अर्जन साहब सर्वशक्तिमान ने ना, उन्होंने को तती तवी ते बिठा सकता है, जो चाहन तो नहीं बिठा सकता ना। पूरी पृथ्वी नूं फना कर देन एक सेकंड च, फिर भी वो तती तवी ते बैठ रहे।
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਸ ਕੱਟ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੀਸ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਮਾਣੇਪਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਨਿਮਾਣੇਪਣ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਮਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਈ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਜਗਤ 'ਚ ਰਹਿ, ਤਾਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਦਰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਅਗਰ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਨਿਮਾਣੇ ਤੋਂ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਡਰਪੋਕਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਦੁਸ਼ਟ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲਓ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਨਿਮਾਣਾ, ਮਾਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਿਮਾਣਾ। ਨਿਮਾਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨਿਮਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਿਮਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋਇਆ? ਨਿਮਾਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ। ਨਿਮਾਣਾ, ਮਾਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਚਲੇ। ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਚਲੇ। ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ ਜਗ ਰਹੋ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ। ਰੋਸ, ਗੁੱਸਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ ਨਿਮਾਣਾਪਨ। ਦੋ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਹੈ, ਉਸ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕਰਨਾ, ਹਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗੁੱਸਾ, ਕ੍ਰੋਧ। ਤੇ ਉਸ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਮਾਣਾਪਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਗਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਰਾ ਰੇਨ ਹੋਤ ਸਭ ਜਾਂ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਰਾ ਅੱਖਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂਕੀ। ਜਾਂਕੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਹੀ ਰੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੇਨ ਹੋਤ ਸਭ ਜਾਂਕੀ। ਰੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੇ, ਜਾਂ ਰੇਨ ਹੋਣਾ ਲੋਚਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਧੂੜ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੂੜ ਬਣਨਾ ਲੋਚਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਧੂੜ ਹੋ ਜਾ ਉਹਦੀ।
मन नूं बिल्कुल धूड़ बना दे, बिल्कुल मिट्टी बना दे। मन रोड़ा नहीं बनना चाहिए, मन लोया भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि लोया सिर फाड़ देता। मन लोया है, कईयां दे सिर फाड़ दे। मन चोबां है, किन्नियां चोबां बंदियां नूं मारदे हां असीं जीवन च। साडियां चोबां किनू किनू लगदियां ने, सानू तो यह भी ज्ञान नहीं। मन लोया है, मन सरिया है, मन नेजा है, तलवार है, बड़े फट मारदे मन। बोलां राही, अखां दे राही ऐसी टेढ़ी अख नाल देखदा, फाटी ते मार रहे और की कर रहे, ऐसा बोल बोल रहे, बरछा ही तो खुबा रहे और की कर रहे। बरछा खुबान की लोड़ ही नहीं पैंदी, उहदा बोल ही खुब जांदा। गुरु पातशाह कहंदे भी यह चीज़ां सारियां कड्डो, जिहड़ियां कि इस बॉडी दे विचों पता चलता है कि मन लोया है। दूसरे तो डर लगता है कि बंदा लोया, पता नहीं हुणे ही मेरे पेट च ही ना खुब जाए किते। इहदा बोल इस तरह दे ना बनो। हर कोई पसंद करे बहना भी मैं इस बंदे को बैठा, पसंद करे। जाप साहब के अंदर ना भगती वाले दे दो जलवे दसे ने। एक जलवा है उहदा सूरज वर्गा, एक जलवा है उहदा चंद्रमा वर्गा। तो जदों असीं ये लफज पढ़ते हाँ, हे रव हे सस, तो रव सूरज है, सस चंद्रमा। कहते ने परमात्मा तेनों जिहड़ा है, कोई तो सूरज वर्गा कहंदा, कोई चंद्रमा वर्गा कहंदा, कोई कहता तू ठंडा है, बहुत ठंडा है, कोई तेनों कहंदा कि तू बहुत गर्म है। पर मैं तेनों दोवें रूपां च मनना कि ये सूरज वर्गे जलाल रखण वाले, सूरज वर्गा तेरे कोल तेज है, चंद्रमा वर्गा तेरे कोल शीतलता है, शांति है, ठंड है। कहंदे कि सूरज वस प्रभु, चंद्रमा वस प्रभु, मेरी तेरे अगे अरदास है कि मेरे उत्ते तू बख्शिश कर। हे रव हे सस हे करुणा निध, मेरी अबय बेनती सुन लीजै। और न मांगत हो तुम ते कश, चाहत हो चित मैं सोई कीजै। शस्त्रन स्यों अत हीरन भी धर, जूझ मरों तो साच पतीजै। मैनू शस्त्र दे, मैं शस्त्रां दा अभ्यासी होवां ते उन्हां शस्त्रां दी वरतों करके संसार दे अंदर शक्ति वरतावां, शांति वरतावां, धर्म चलावां, ते मेरा सुभाਅ जिहड़ा तेरे वर्गा होवे। मैं ठंडा इतना होवां कि हर कोई मेरे कोल बहना चाहे, मैनू पसंद करे। पर मैं गर्म भी इतना होवां कि मेरा कोई गलत इस्तेमाल ना करे, मैनू कोई ठग ना जाए। मेरे को सूरज वर्गा तेज प्रताप होवे कि कोई मैनू ठग ना सके, पर चंद्रमा वर्गी मेरे को शीतलता होवे कि मेरे को हर कोई बैठे। सूरज वर्गी तपश होवे कि मैं जालमां दा नाश कर दियां, जुल्म दा नाश कर दियां, पर चंद्रमा वर्गी मेरे को ठंडत होवे कि मैं संसार के अंदर शांति वरता के धर्म का बोलबाला कर दियां। तो दो ही तो काम करने ने दुनिया जाके, धर्मियों का बोलबाला करने। रोज़ ही पढ़ते हैं पंथ की जीत, रोज़ पढ़ते हैं धर्म का जय जयकार। तो खाली कहण नाल ते नहीं ना धर्म की जय जयकार होनी। धर्म की जय जयकार होएगी पहले स्वयं धर्मी बनिया जाए, उस तो बाद संसार के अंदर धर्म फैलाया जाए। तो वह धर्म अदों फैलाया जाएगा जदों बंदा खुद धर्मी होएगा, तो उसदे हत्थ विच जदों शस्त्र आएगा, तो वह शस्त्र जिस वेले चलेगा तो वह शस्त्र शांति वरतांदा चला जाएगा। सच है कि असी शस्त्र की गल करते हैं, पर शस्त्र फड़ाना किनू है,
ये अजे ज्ञान नहीं है। शस्त्र फड़न वाले तो बणीए तो शस्त्र चलान की फिर देखो किवें चलदा फिर देखो संसार के अंदर किवें धर्म का जन्म होंदा है ते अधर्मियों का किवें नाश होंदा है। इस तरह सिख नूं किया गया ये निमाणापन है जी, ये बड़ी वड्डी पहचान चाहिए, बहुत वड्डी पहचान चाहिए। गुरु घर दे विच खंडे की बड़ी मानता है। खंडा असल च पुरातन युगां तो भगतां दे कोल आया, पुरातन युगां तो चले आ रहा खंडा। तो गुरु कलगीधर पातशाह ने कहा खंडा प्रथमे साज के कुदरती दा खेल रचाया। ये जिहड़ी रचना हुई है एक शक्ति तो हुई है तो वो शक्ति खंडे वर्गी है। तो तुसी देखो जिहड़ा गुरुद्वारे निशान साहब हुंदा है उहदे उत्ते खंडा हुंदा है। वो खंडा क्यों होंदा है और खंडा होना चाहिए, उसका कारण है खंडे दियां दो धारा होंदियां ने, एक धारा जन्म देंदी है, एक धारा मरण करदी है। एक धारा सुख है, एक धारा दुख है। एक धारा विनाश करदी है, एक धारा उत्पत्ति करदी है। कहंदे कि रब ऐसी शक्ति है, दो धारी शक्ति है, तो वो दो धारी शक्ति जन्म भी कर रही है, मरण भी कर रही है, उत्पत्ति भी हो रही है, परलोक भी हो रही है। तो कहंदे जे तू उस शक्ति नाल जुड़ना है तो इत्थे अंदर गुरु बैठा है, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का जिथे प्रकाश होवे निशान साहब उत्थे ही होना चाहिए, एवं हर जगह नहीं होना चाहिए। निशान साहब ये दस रहे हैं कि दो धारी शक्ति है, वो खंडा है तो वो चला रही है सारे पासे। तो उसका ज्ञान लेना होवे तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी बैठे ने अंदर, प्रकाश ही उन्हों का। अगर तू गुरु ग्रंथ साहब जी नाल गल्लां करनियां ने तो आके कर ले, तेनों दो धारी शक्ति का ज्ञान करा देंगे, तो तेनों भी दो धारी ही बना देंगे। बाबा दीप सिंह ने दो धारी चुकिया सी ना, तो फिर उन्होंने सामने को खड़ा हो सके, नहीं खड़ा हो सके ना। ये बल है, शक्ति है, ये जुगां तो चलिया आ रहा है। इसनूं ब्राह्मणों ने छुपा दिता सी, गुरु साहब ने फिर इस युग दे विच प्रगट किया, क्योंकि सिख आदतों है, आदतों सिख सीगा जिहड़ा कि रब नूं मनदा आ रहा सी। विच आके ब्राह्मणिज्म ने उस सिख नूं छुपा दिता सी। इस युग दे विच आके फिर गुरु नानक साहब ने 10 पातशाहियां ने उस सिख नूं प्रगट किया जिसनूं विच छुपा दिता गया सी। तो सिख आदतों है, क्योंकि बाणी भी आदतों है। गुरु साहब ने उन्होंने फिर प्रगट किया इस युग च। इस तरह असीं निमाणे मनने, निमाणे का अर्थ पता होना चाहिए कि निमाणे का मतलब कोई दुष्ट अगे झुकना भी नहीं, पर अपने आप को बचा के भी रखना है, क्रोध इत्यादक तो बच के रहना है। ध्यान रहे जिवें सोने का गहना बनाना होंदा ना, गहने च खोट पाईदा, खोट बिना गहना नहीं बनता। प्योर सोने का गहना नहीं बनता, उहदे च लचक नहीं आती, फिसल जाता। उहदे च थोड़ा जिहा खोट पा देंदे ने। इसे तरह जो जीवन के विचरना होंदा है ना, तो अदों खोट पता होना चाहिए कि कितना पाना है। खोट पता है, जिवें क्रोध की वरतों बड़ी नॉर्मल जी होनी चाहिए, सिर्फ गहना बनाने वास्ते, नहीं तो गहना नहीं बनता है। पर अगर वो खोट ही खोट रह जाए तो सोना फिर कितने रह गया? सोना तो चिप गया। ये मैं पॉइंट आप जी ने साझा करें, इनू बहुत बरीक पॉइंट है। जिथे जाके वो जी नॉर्मल जी खोट इस्तेमाल हुई है ना, नॉर्मल जी खोट, उसने गहना तो बना दिता है, गहना बनेगा। अगर वो नहीं खोट पाई जाएगी तो फिर 24 कैरेट का सोना है मेरा, वो फिर लाकर च ही रहिंदा, उसका इस्तेमाल नहीं होंदा। इस्तेमाल होंदा किसी का शिंगार बनता है तो फिर वो खोट की उन्नी वरतों पता होनी चाहिए।
भी कितनी। उत्थे जिसले क्रोध का इस्तेमाल होंदा है तो वो क्रोध जिहड़ा है वो वीर रस के रूप च होंदा है, तो वो खोट पैंदी है तो उस संसार के अंदर तां शांति वरतदी है, नहीं तो बंदा फिर मुर्दा हो जाता है। उस रूप दे विच पता होना चाहिए। तो जे सारा क्रोध ही क्रोध है, निरा खोट ही खोट है, तो फिर सोना कित्थे हैगा वे? सोना तो अलोप हो गया। ये तो गुरु साहब निमाणेपन दा अर्थ ये दस रहे ने। ताकत हुंदियां होइयां, शक्ति हुंदियां होइयां उस शक्ति की गलत वरतों नहीं करनी, उस शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। जिथे इस्तेमाल करने उत्थे करना भी है, जिथे नहीं करना उत्थे नहीं करना है। ये ज्ञान किस तरह मिलेगा? ये ज्ञान सानू मिलेगा बाणी तो। यदि सानू समझ इस तरह आएगी, गुरु साहब तो लैके 10 पातशाहियां तो लैके अगे गुरसिखां तक वो दो तरह की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। लड़ाई दो तरह की। एक लड़ाई गुरु अर्जन देव जी ने लड़ी है, एक लड़ाई गुरु हरगोबिंद साहब ने लड़ी है। लड़ाई वो भी है, लड़ाई ये भी है। एक लड़ाई गुरु नानक साहब ने लड़ी है, एक लड़ाई गुरु अंगद साहब ने लड़ी है। लड़ाई का अर्थ सानू समझ विच नहीं आता है। असी सिर्फ यही समझने कि गुरु हरगोबिंद पातशाह ने युद्ध लड़े। युद्ध गुरु अर्जन देव जी ने भी लड़े है, युद्ध गुरु तेग बहादुर साहब ने भी लड़े है, युद्ध गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी लड़े है। युद्ध के दो रूप होंदे ने। एक लड़ाई होंदी है शांतमई, एक लड़ाई होंदी है क्रांतमई। जिहड़ी शांतमई लड़ाई होंदी है वो गुरु अर्जन देव जी लड़ रहे हैं। शांतमई लड़ाई। शांतमई लड़ाई दे विच की होंदा है कि भाना मनना, जो होए उन्होंने सहन करने, जो होए उन्होंने बर्दाश्त करने। ये शांतमई लड़ाई। तो क्रांतमई लड़ाई दे विच सहन नहीं करना कुछ भी। उत्थे जो है आमना सामने, जिहा वेखे तिहा वेख। जो शस्त्र आया है उस शस्त्र का जवाब उसे शस्त्र च देना। यही लड़ाई कलगीधर बापू ने लड़ी है। जे लड़ाई गुरु अर्जन देव जी ने लड़ी है, वही लड़ाई फिर गुरु तेग बहादुर साहब ने लड़ी। ये शांतमय लड़ाई है। जो बाप ते पुत्र ने लड़ी। बाप शांतमई लड़ाई लड़दा है, पुत्र नूं फिर हुक्म हुंदा है कि तू क्रांतमई लड़ाई लड़। बाप गुरु अर्जन देव पातशाह ते पुत्र गुरु हरगोबिंद साहब। बाप गुरु तेग बहादुर महाराज ते पुत्र अगू गुरु गोबिंद सिंह साहब। एक शांतमई लड़ाई सिखांदा है, एक क्रांतमई लड़ाई सिखांदा है। अज भी वो लड़ाई इसे तरह पंथ दे विच है। जिहड़े बजुर्ग ने, गुरसिख बजुर्ग जिहड़े ने, ये गुरु अर्जन देव जी का स्वरूप है। ये गुरु तेग बहादुर साहब का रूप है। जिहड़ी जवानी है, जूत, ये गुरु हरगोबिंद साहब का रूप है। ये गुरु गोबिंद सिंह साहब का रूप है। उन्होंने का ही सिरजिया है ना। असी अगर इनू समझ लीए तो उही खेड वरत सकते। समझ नहीं रहे असी। इस तरह ये दोवें युद्ध करने जिहड़े आ जान सानू, तो सानू समझ आ जाएगी कि निमाणापन की होंदा है। निमाणेपन की पूरी गल इहदे च दसी गई। गुरु साहब इत्थे समझा रहे ने, जगत विच तू निमाणा हो के चल। निमाणे दा अर्थ ये समझ लो कि गलत वरतों ना की जाए, शक्ति की गलत वरतों ना की जाए। गलत वरतों जदों शक्ति की कोई करदा है फिर वह विनाश हुंदा है। जिमें कंश ने की पहले भगती, फिर शक्ति मिली, फिर गलत वरतों हुई, रावण कोलों हुई, उस तो पहला भी कईयां कोलों हुई, बाबर कोलों हुई, औरंगजेब कोलों हुई। बड़े बड़े लोग पहले भगती करते रहे, शक्ति प्राप्त की, फिर वो गलत वरतों हुई ज्ञान ना होने कारण। इत्थे कह रहे भी रारा है कि सब दी धूड़ हो जा। धूड़ तो भाव कि जिवें मिट्टी है, मिट्टी हो जा। तेरा ध्यान जिहड़ा भाव के मन वो चोभा ना बने,
ਜਦੋਂ ਮਨ ਚੋਭਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਈਰਸ਼ਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਕਾਚਾਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਈਰਸ਼ਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਨ ਲੋਹਾ ਚੋਭਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਚੋਭਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੋਭਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਡਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਮਾਣਾਪਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਮਾਣੇਪਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਭਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਚੋਭਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਚੁਭਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਿਮਾਣਾਪਨ। ਇਹ ਹੈ ਰੇਨ ਹੋਣਾ। ਰਾ ਰੇਨ ਹੋਤ ਸਭ ਜਾਂ ਕੀ, ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ ਛੁਟੈ ਤੇਰੀ ਬਾਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੂੜ ਹੋਣਾ ਲੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅਭਿਮਾਨ ਤਜ ਕੇ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਧੂੜ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੀ ਬਾਕੀ। ਬਾਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਧੂੜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਚੋਭਾਂ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਕਦੀ ਸੋਚਣਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁੱਭਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਵੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਭਿਆ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਚੁੱਭ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਲਈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਔਰ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਚੁੱਭਣ ਦੀ? ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਚੁੱਭਣ ਦੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਬਣੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਮਾਣਾਪਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਭਿਮਾਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਵਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਸਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਨ ਦਰਗੇ ਤੋਂ ਸੀਜੈ ਭਾਈ। ਰਣ ਤੇ ਦਰਗਾਹ। ਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ, ਦਰਗਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰੂਹ ਜਾਂਦੀ, ਅਗਲਾ ਦੇਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ, ਇਸ ਰਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਤੂੰ ਸੀਜੈ ਭਾਈ। ਸੀਜੈ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, तेरी कामयाबी हो जाएगी। अगर निमाणापन आ जाए तो चोभां खत्म हो जान, जीवन दे विच ऐसा हो जाएगा कि ये रण क्षेत्र च कामयाब ते दरगाह च भी कामयाबी, उत्थे भी दोए पासे। जो गुरमुख राम नाम लिवलाई। एक ते हंकार छड्डना, हंकार दा भाव कि चोभा ना बना मैं किसी लिए। फिर अंदर शांति वरतेगी। हंकार दी निशानी है अंदर कलेश है, ये हंकार दी निशानी है। अंदरों मैं शांत नहीं हाँ। हंकार दे विच बंदा कोई शांत थोड़ी रह सकता है, वो फिर अशांति बाहर कढ़दा है। महाराज कहते ने एक तो निमरता च जान की लोड़ है, तो दूसरा जो गुरु दे राही, गुरमुख बने गुरु, गुरु दे राही राम नाम दे विच अपनी सुरती नूं जोड़दा है, लिव लाउंदा है, ध्यान नूं जोड़दा है, वो कामयाब हो जाता है। दो काम करने ने, निमरता ते नाल नाम। कहते जी इस तरह हो गया, देखो कितनी वड्डी गल दस रहे। अगर ये काम हो गया, मैं चोभा ना बनया, तो राम नाम दे विच मेरी लिव लग गई, सुरती लग गई, ध्यान लग गया, लगन लग गई, लिव लाई मैं लगन लग गई। रहत रहत रहें जाहें बेकारा। कहते फिर रहत रहत, रहत मतलब रहंदियां रहंदियां रह जाणगे बेकार, खत्म हो जाणगे, पिछे रह जाणगे।
तेरी सुरती उन्होंने मलिया मेट करती चली जाएगी, सारे बेकार अंदरों खत्म हो जाना है, कोई बुराई अंदर रहेगी ही नहीं, सुभाष सब खत्म हो जाएगी। रहत रहत रहें जाहें बेकारा, सारे बेकार चले जाएंगे। गुरपूरे कै शब्द अपारा, पूरे गुरु दे शब्द द्वारा जिहड़े अपार, अपार मने बहुत ज़्यादा जिहड़े अंदर बेकार हैं, वो सारे पूरे गुरु दे शब्द द्वारा खत्म हो जाएंगे। और रहत रहत मने सहजे सहजे, ये सहजे सहजे काम होएगा। सिमरन दे विच कदी भी काली वाला काम नहीं होंदा, ये बहुत ठहराव वाला काम है। जिथे बंदा काली करेगा उथे खो जाएगा। अगलियां दो लाइनां च कह रहे ने, राते रंग नाम रस माते, कहंदे जे वाहिगुरु दे नाम रंग च रत गए, नाम रंग दे विच रते गए ते नाम रस विच मस्त हो गए। दो काम, रस माते रस विच मस्त हो गए, फिर नाम दा रस लैन लग गए, भुल गए सब कुछ जेड़े, ते ओ नाम रंग विच नाले रते गए, रंगे गए, नाम रंग च रंगे भी गए ते नाम रंग दे विच मस्त भी, रस विच भी मस्त होए। देखो नाम एक ते रंगदा है सानू ते एक रस देंदा है, एक मस्ती देंदा है। नाम दे विच रंग भी है, नाम दे विच रस भी है, नाम दे विच मस्ती भी है। रस जिहड़ा है जिसले जीव नूं आंदा है फिर उसे नूं आंदा है। जदों रंग चढ़दा है तो वह रंग भी चढ़दा है तो उसे जीव नूं ही चढ़दा है। वो जिसले वधदा है उहदे च वाधा हुंदा है तो फिर उसका जपिया होया रस जिहड़ा है वो दूसरिਆਂ तक भी पहुँच सकता है, वो रंग भी पहुँच सकता है। राते रंग नाम रस माते, इत्थे दो चीज़ों का जिक्र आया, नाम दे विच रत जाना, नाम दे विच रंग जाना, ते नाम दे रस विच रहना, ते नाम दी मस्ती च रहना। ते वैसे एक चीज़ होर है, वो है नाम दी खुशबू। रंग दी कोई खुशबू नहीं होंदी, पर रंग रंग होंदा है। लाल रंग तिसको लगा जिसके वड भागा, ये अंदर दा रंग है जिहड़ा मन नूं चढ़दा है। ते नाम दा रस भी बड़ा कमाल दा हुंदा। रस ते फिर रस बिना ते कोई चीज़ खाधी नहीं जाती। नाम दा अपना रस है, नाम दी एक मस्ती है, पर नाम दी सुगंध भी है। सुगंध दूसरिਆਂ तक पहुँच जाती है। रस तो अपने तक ही रहिंदा है, रंग भी अपने तक रहिंदा है, पर उहदी खुशबू जिहड़ी है वो दूसरिਆਂ तक पहुँच जाती है। ये सारिया चीज़ां अंदर पैदा होंदियां ने। इत्थे कह रहे भी जिहड़े नाम दे रंग च रते गए ते नाम दे रस विच मस्त हो गए। नानक हर गुर की नींद ते, हे नानक हरि गुरु ने उन्होंने दात कर दी, दात दे दी, वो दातां वाले हो जाते, उन्होंने सब कुछ मिल जाता है। हुण इत्थे नोट करना जी, साडी कमजोरी की है। साडी कमजोरी ये है जिन्हों अज दूर करने वास्ते के असी हंकार च, हंकार मतलब असी चोबां हैगे, किते ना किते असी जरूर चुभदे हाँ। ये प्रॉब्लम है। गुरु साहब कहते चोबां खत्म कर दो, अपनी चुभना बंद कर दो, किसी को चुभो नहीं, हंकार खत्म, तो हुण नाम जपो, तो नाम दे रस भी आ जाओ, नाम दे रंग भी आ जाओ, लिव लगाओ, तो कहते हरि गुरु सारियां दातां दे देगा तुहानूं, सब कुछ जो जो तुहानूं चाहिए वो भी दे देगा, जो नहीं चाहिए वो भी दे देगा। पृथ्वी तुहाडी, जे तू मेरा होए रहें सब जग तेरा होए। ये इन्नी वड्डी गल बन सकती है। एक तो यह गल कही है पौड़ी दे विच दो काम करने वास्ते कि अपनियां चोभां खत्म करके, मैं बार बार रिपीट कर रहा,
ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁੱਭਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਭਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੁੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਚੋਭਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚੁੱਭਦਾ ਫਿਰ ਓਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ, ਫਲਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ। ਫਲਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਰਿੜਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਰਿੜਕਦਾ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਰਿੜਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਰਿੜਕਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਰਿੜਕਦਾ ਹੋਵੇਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਰਿੜਕਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਭ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ, ਪਰ ਰਿੜਕਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚੋਭ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਭਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚੋਭਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੜਚਨ ਹੈਗੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ, ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੱਢੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੋੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਉਹ ਚੋੜੇ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਚੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਦੂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਉਹਦਾ, ਬਦਦੁਆ ਮਿਲ ਗਈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਟਿੰਡ ਫਿੰਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਗਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਮੌਤ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਕੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਭਾਲੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਤਾਨ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਗਾਓ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਅੜਚਨ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਕੜਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਾਫਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੋ। ਨਿਮਾਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਨਿਮਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਦਦੁਆ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਰ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪਿਆਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ, ਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਉਸ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੁਰਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ, ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ ਤੁਮ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਰਾਇਆ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ ਤੁਮ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਮੀਤ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਲੰਘੀਏ ਅੱਗੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ, ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀਏ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀਏ, ਦੋਵੇਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਲਈਏ, ਅਗਲੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਲਈਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੁਗਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਰੋਸ਼ਨ ਕਾਹੂ ਸੰਗ ਕਰੋ ਆਪਨ ਆਪ ਵਿਚਾਰ, ਹੋਏ ਨਿਮਾਨਾ ਜਗ ਰਹੋ
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਰ। ਨਿਮਾਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ, ਨਿਮਾਣੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਆਰਟ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਆਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਕਲਾ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਦਿਓ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿਓ, ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿਓ। ਨਿਮਾਣੇ ਬਣ ਗਏ, ਆਕੜੋ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬਸ ਇਹ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਹੋਏ। ਨਿਮਾਣਾ ਜਗ ਰਹੋ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਕਲਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਫਾਇਦਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਫਾਇਦਾ, ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪੋ, ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਚਲੋ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਪੋੜੀ ਰਾਰਾ ਰੇਨ ਹੋਤ ਸਭ ਜੰਗ ਕੀ, ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ ਛੁਟੈ ਤੇਰੀ ਬਾਕੀ। ਰਨ ਦਰਗਹਿ ਤੋ ਸੀਜੈ ਭਾਈ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵਲਾਈ। ਰਹਿਤ ਰਹਿਤ ਰਹਿ ਜਾਹੀਂ ਬਿਕਾਰਾ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰਾ। ਰਾਤੇ ਰੰਗ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਰ ਕੀ ਨੀਂਦ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।